اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عروج عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف نیٹ ورک۔ سب کام چھوڑ کر آج کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت رنگ لائے گی۔ 5 ذی الحج دن کو سب کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھ لینا پوری زندگی کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ جو کبھی نہ مل سکا وہ آج قدموں میں ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے دن سب لوگ یہ تسبیح ہر صورت پڑھ لینا۔ بدقسمت ہی ہوگا جو یہ تسبیح چھوڑے گا۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گی۔ آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے کسی بھی دن کر لینی ہے۔ 5 ذی الحج کو بھی کر سکتے ہیں، 6 7 کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو 10 ذی الحج سے پہلے کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور آپ کے اوپر اپنا خاص کرم نوازیاں کریں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ترین ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، مالا مال کر دے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مال و دولت سے نواز دے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو ان سب کے لیے میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس آپ نے کسی بھی دن کر لینا ہے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، اسی وقت آپ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کامیابیوں کے تمام دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو بہن بھائی اپنا گھر لینا چاہتے ہیں یہ تسبیح پڑھ لیں، یقین جانیں یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب و طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ خاص تسبیح اور اللہ پاک کا صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہم آپ کو سورہ یاسین کی خاص آیات کا وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح شام کے وقت سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت کا اور اللہ پاک کے نام کا وظیفہ کسی بھی دن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ حدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل موجود ہیں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس صورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ صورت بستی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اول ہے، لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کی لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمرہ فیا کون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا بنیادی فرض ہے بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی دیکھتے ہیں، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر دیکھے بغیر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک بے شک قیمت لپٹے ہوئے اونچے مقام پر رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو دور اس کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن
अपनी तवज्जो का सबसे बड़ा रास्ता होता तो फिर किताब क्या ज़रूरत थी। किताब इसलिए है कि हम बार बार पढ़ें, हर बार नई मैनी तलाश करें कि फिर हमें इसमें नए मैनी और बर वक्त रहनुमाई नसीब होगी। लफ्ज़ की हुर्मत ये है कि जो पढ़े ये जाने वही कि इसके लिए इसी वक्त इसके दिल पर नाजिल हुई है। अल्लाह के हर हर्फ में एक जहां मैनी आबाद है जिसका हमारी सोच अहाता भी नहीं कर सकती। जो भी ये अमल करे बापरहेज करे, यानी गोश्त, अंडा, कच्चा लहसुन, प्याज ना खाए और पढ़ने से पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम ज़रूर करे। कुन फयकून का वजीफ़ा हर हाजत के लिए किया जाता है। अगर जॉब नहीं लग रही या वीज़े का मसला है, औलाद नहीं हो रही, शादी की बंदिश या रुकावट है, या पसंद की शादी में कोई रुकावट है, कारोबारी बंदिश, जादू सहर से हिफाजत, सरकारी मुलाजमत के असूल गर्ज, हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं इस अमल को। ज़ाती मकान की ख्वाहिश या किसी भी मुश्किल के लिए पढ़ सकते हैं। बाद नमाज इशा 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ें। इसके बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 बार दुरूद इब्राहिमी के बाद 100 मरतबा दर्ज झेल आयत को आपने पढ़ना है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। और वो आयत ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। एक दफ़ा फिर सुन लें, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। ये आयत आपने 100 मरतबा पढ़नी है। इसकी तो शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इतना ही फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 11 मरतबा अपने दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से सजदे में जाकर दुआ करें। 3 दिन तक इस अमल को जारी रखें। अल्लाह के हुक्म से मुश्किल हाजत अल्लाह पाक पूरी करेंगे। जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, इनके लिए जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। सूरह यासीन में इनकी इस ख्वाहिश की तकमील का जिक्र फरमाया है, क्योंकि जन्नतियों के इससे बढ़कर और क्या ख्वाहिश होगी कि इनका रब इनसे फरमाए, ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दरमियान में आप सूरह यासीन की ये आयत पढ़ेंगे और एंड पे फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इस दुनिया में कोई शख्स अल्लाह ताला को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख नहीं सकता, मगर जन्नत में अहले जन्नत अल्लाह ताला को यूं देख सकेंगे जैसे यहाँ हम चाँद की तरफ देख सकते हैं और हमें राहत महसूस होती है। इस दुनिया में अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बिलावास्ता कलाम ज़रूर किया है। लिहाजा आलम आखिरत में अल्लाह ताला का अहले जन्नत से और अहले जन्नत का अल्लाह ताला से हम कलाम होना मुमकिन होगा और ऐसा तोहफ़ा और ऐसी नेमत मिलेगी जिससे बड़ा तोहफ़ा बड़ी नेमत कोई नहीं, क्योंकि इससे इन्हें इसकी अब्दी रज़ा हासिल हो जाएगी, जिसके बाद वो कभी इन पर नाराज़ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके अलावा आजकल काले इल्म, काले जादू मर्ज बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन हर घर में कोई न कोई इस मर्ज में मुब्तला नज़र आता है। मैं ये अमल इन बहनों और भाइयों के लिए हाजिर कर रही हूँ जो काले इल्म की वजह से बहुत परेशान है। हर किसी पर काला जादू कर दिया गया है, जिसके बायस वो शदीद बीमार रहते हैं और ऐसे अमराज से इजाब करने से बावजूद हालत में 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर पानी पर दम करे और 21 दफ़ा पढ़कर मरीज़ पर दम करे। दम किया हुआ पानी रोज़ाना 7 दिन तक पिलाएं। अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़े। इंशाल्लाह जैसा भी काला जादू किया गया इसका खात्मा हो जाएगा। मुलाजमत के लिए अगर किसी ने जादू के ज़रिए किसी की मुलाजमत या कारोबार में रुकावट डाल दी है, इसके वास्ते हर नमाज के बाद पढ़े। इंशाल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी। इसके बाद आपने 100 दानों की तस्बीह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सफ़ाती नाम या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, इन 3 नामों को पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, देखा जाए तो ये अमल अभी एक ही हुआ और दूसरे अमल का हिस्सा दुआ होती है। अगर आप सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आसमान की तरफ बुलंद कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पहले हम्दो सना करें। ए अल्लाह, तू मालिक है, तू हमें पैदा करने वाला है, हमें रिज़्क़ देने वाला है, तू ही हमें खुशी देता है, तू ही हमें गम देता है। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से निकली हुई हर दुआ आप अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कहा जाता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सफ़ाती नाम आयत मुबारक
मुबारकत जो मैंने आपको वजीफ़े की शक्ल में बताई है, जब आप पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है। अगर आप सच्चे दिल के साथ इन कलमात को पढ़ कर अल्लाह से मांगेंगे तो यकीन जाने आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, आपके तमाम रिज़्क़ के मसाइल आज ही हल हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आप जो भी अमल करें सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। हज़रत यहया बिन अबी कसीर से रवायत है, फरमाया जिस शख्स ने सुबह सूरह यासीन की तिलावत की तो वो शाम तक खुशी में रहेगा, और जिस शख्स ने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की वो सुबह तक खुशी में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा वो शहीद की मौत मरेगा। एक रवायत में है जो शख्स सूरह यासीन को डेली पढ़ता है, रोज़ाना पढ़ता है, इसकी मग़फ़िरत की जाती है, और भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जरा रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है उसको वो जानवर मिल जाता है। आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी ख्वाहिश के लिए सूरह यासीन की तिलावत कर सकते हैं और इसका वजीफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही मुतबरक वजीफ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अमल आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।